Hi friends, welcome to my channel CA Joyam on YouTube. Hope you enjoyed today's presentation. Today's presentation is from CA Mehta J and Company Chartered Accountants. Hi friends, a very rainy September day of Wednesday. So hence my starting video will be welcome to CA Joyam with a rainy natural background. Okay. That apart, today we are going to discuss a very latest and nice update of income tax, compounding of offenses under the Income Tax Act. 16 सितंबर 2022 मतलब 5 दिन पहले CBDT Central Board of Direct Taxes has come out with these guidelines for compounding of offenses. Compounding, interest compounding. What is compounding? इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है मतलब आप एफडी कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिल रहा है तो बेनिफिट है, दैट इज कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। वैसे ऑफेंसेस में, क्रिमिनल केसेस में कंपाउंडिंग का मतलब है बेनिफिट बाय वे ऑफ रिड्यूस्ड पेनल्टी, रिड्यूस्ड सेंटेंसिंग ऑफ जेल। तो जो बेनिफिट क्रिमिनल केसेस में मिलता है विच यू कैन सेटल, विच यू कैन ऑफर कि मेरे से गलती हो गया मुझे माफ कर दो, ऐसे कुछ गुनाह है जिसको कंपाउंड किया जा सकता है, मतलब आप ये केसेस को खारिज करवा सकते हैं, खत्म करवा सकते हैं। दिस इज कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। द CBDT has come out with revised guidelines. So instead of a detailed lecture point by point which will confuse you, go through the slide after my speech in which all the categories are listed one by one. It will help you to understand and get back to me for any queries. My website ID is given, in that you will find my mail ID and phone numbers, or you can message on YouTube, I will revert. Now, the relaxation is in the form of a tenure. Number one, tenure था पहले ऑफेंस फाइल होने के 24 महीने के अंदर यू हैड टू फाइल अ कंपाउंडिंग एप्लीकेशन, दैट हैज बीन रिलैक्स्ड टू 36 मंथ्स मतलब 3 इयर्स। दिस टाइम लिमिट इज फ्रॉम एनी टाइम, डिपार्टमेंट के नजर में आए या नहीं आए, ऑफेंस फाइल हुआ है या नहीं हुआ है, आप वॉलंटरीली एप्लीकेशन कर सकते हैं। बट अगर प्रोसिक्यूशन हो गया है, if the case is filed in a court of law, then you have to do it within 12 months of filing of the complaint in the particular court of law, क्योंकि आपके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन हो गया है। प्रोसिक्यूशन मतलब you are prosecuted, you are deemed guilty of a particular offense in the Income Tax Act. If the case is filed under IPC, Indian Penal Code, then it cannot be compounded. But section 321 of the CRPC, Criminal Procedure Code 1973 of India, provides for a compounding of offense. अगर कंप्लेंट दोनों IPC और CRPC में दिया गया है, किया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा कोर्ट में, और दोनों ऑफेंसेस सिमिलर इन नेचर है, सो यू कैन गो इन फॉर कंपाउंडिंग। बट ऐसा जाएंगे मिल जाएगा नहीं है, देयर इज अ प्रोसीजर टू बी फॉलोड विच इज देयर इन माई प्रेजेंटेशन। फिर से आप अभी कंफ्यूज हो जाएंगे, सो रीड इट। जो रीड करेंगे वो आपके दिमाग में ज्यादा देर रहेगा। अब इसके 2 कैटेगरीज बनाए गए हैं, कैटेगरी A, कैटेगरी B। इसका भी लिस्ट मेरे प्रेजेंटेशन में है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? कैटेगरी A इज अ ऑफेंस ऑफ ओमिशन, कैटेगरी B इज ऑफेंस ऑफ कमीशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? ओमिशन इज अनइंटेंशनल एरर, दैट इज ऐसा कोई गलती जो आपने अनइंटेंशनली कर दिया है, कोई कारणवश आप TDS डिडक्ट किए पे नहीं कर पाए, ITR नहीं भर पाए, ऑडिट नहीं करवा पाए। सो दीज ऑफेंसेस आर अनइंटेंशनल, नॉट डन विलफुली, सो दीज आर एरर्स ऑफ ओमिशन। कैटेगरी B है जिसमें कंपाउंडिंग मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, जो नहीं मिलने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज दे आर ऑफ द नेचर ऑफ कमीशन, मतलब आपने सोच समझ के प्लान करके विलफुली डिफॉल्ट या डिफ्रॉड किया है डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट को। इसका एक लिस्ट भी दिया गया है मेरे प्रेजेंटेशन में, तो आप पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझेगा। For any further queries, you can get back, and these guidelines are available on the e-filing portal or the incometaxindia.gov.in website. The detailed 30-page circular is available on the website of Income Tax Department. You can go through it or revert to me for any doubts whatsoever.
Have a wonderful time going through the presentation. It's an important element introduced by CBDT 5 days back. Enjoy the video. Hi friends, Income Tax Department on 16 September has allowed compounding of income tax offences where the sentencing is up to 2 years of imprisonment. Now you can settle this with the department by paying some interest or penalty along with the online challan. The eligibility has been relaxed from 2 years to 3 years. अर्लियर ऑर्डर पास होने के 2 साल के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ता था, अभी 3 साल तक उसको कर दिया गया है. और द टाइम लिमिट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ कंपाउंडिंग एप्लीकेशंस इज आल्सो रिलैक्स्ड टू 36 मंथ्स फ्रॉम द अर्लियर लिमिट ऑफ 24 months. So this is a good step by the Income Tax Department which will free the courts of many litigation. The offence under section 276 also has been made compoundable. कंपाउंडेबल मैं अलग से डिस्कस करूंगा मेरे वीडियो में. व्हाट इज कंपाउंडेबल इन शॉर्ट, देन यू कैन गो थ्रू दिस स्लाइड्स इंडिपेंडेंटली. और डिपार्टमेंट ऑल्सो हैज इंट्रोड्यूस्ड स्पेसिफिक अपर लिमिट्स फॉर द कंपाउंडिंग. Additional compounding charges in the nature of penal interest of 2% per month up to 3 months and 3% per month after 3 months has been reduced to 1 and 2% respectively. और 2 कैटेगरीज बनाए गए हैं ऑफेंसेस का. फर्स्ट इज कैटेगरी ए विच इज अ ऑफेंस ऑफ ओमिशन, मतलब बाय टेक्निकल एरर या कुछ हो गया होगा, गलती से हो गया होगा, वो कैटेगरी ए में है. और कैटेगरी बी जो है वो कमीशन के ऑफेंसेस है जो कंपाउंड हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं क्योंकि वो विलफुल इंटेंट टू डिफ्रॉड द गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट से किया गया है, तो वो कैटेगरी बी में डाला गया है. तो आप जब एप्लीकेशन करेंगे तो ये दोनों कैटेगराइजेशन डिपार्टमेंट करेगा और फिर आप एलिजिबल होंगे कंपाउंडिंग के लिए. एप्लीकेशन के एलिजिबिलिटी एक 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर एफिडेविट करके डिपार्टमेंट को अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन. बट ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर के 12 महीने के अंदर ये एप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा, तभी आप कंपाउंडिंग के लिए एलिजिबल होंगे. तो कीप दिस इन माइंड. द स्लाइड्स विच यू आर सीइंग नाउ आर ऑल ऑफ एलिजिबिलिटी. Application filed after the end of 12 months, the same should be intimated to the applicant within 30 days by the department. और फिर कंपाउंडिंग एप्लीकेशन वैलिड रहेगा. तो आप इस लिमिटेशन का ध्यान रखें, आप सारे स्लाइड्स पढ़ें. एंड इन केस यू हैव गॉट एनी डाउट्स, रिवर्ट टू मी. इन दिस स्लाइड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म्स ओकेशन एंड फर्स्ट ऑफेंस. अब बार बार रिपीट ऑफेंडर है तो आपको कंपाउंडिंग नहीं मिलेगा क्योंकि आप हर बार गलती करेंगे और कंपाउंडिंग के लिए जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है. तो ये स्लाइड्स में डिस्कस किया गया है मीनिंग ऑफ द टर्म्स ओकेशन एंड फर्स्ट ऑफेंस फॉर द पर्पस ऑफ दीज गाइडलाइंस. तो ये स्लाइड्स आप पढ़ेंगे तो आप एलिजिबिलिटी का ये रहेगा. दिस स्लाइड इज ऑल अबाउट रिलैक्सेशन ऑफ द टाइम लिमिट फ्रॉम 24 to 36 months. पर आपको चार्जेस लगेगा 1.5 गुना. होप यू एंजॉय द प्रेजेंटेशन.